दूसरा हम ये देखते हैं कि फुलझड़ियाँ, पटाखे फाड़े जाते हैं। अच्छा, फुलझड़ियों के हवाले से अक्सर मैं ये सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को जलाना या किसी भी चीज़ को फाड़ना या किसी भी चीज़ को, जैसे कि फुलझड़ी हो गई, काफ़ी देर तक आप उसको हाथ में लेकर देखते रहो। बचपन में इत्तेफाक हुआ है, अक्सर शब बारात वगैरह में हम जलाया करते थे। ऐसा लगता है आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, आपकी जो भी मसले मसाइल हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है सतगुरु 99% पीपल विल स्टिल डू दिस मिस्टेक ऑन दिवाली। अंडरस्टूड? सो स्टार्ट करते हैं। For those of us who live in the northern hemisphere, it is from this day onwards, certain things change. From the Trayodashi of Kartika Masa, from this month onwards, normally, traditionally, the roles of males and females are interchanged at this time. Mentally, little bit of depression could easily happen in everybody because the season is like that. If some of these things are revived, because Diwali is not a religious festival, it's got something to do with our geographical location on this planet. This is a festival which always comes in the month of Kartika as per the lunar cycles, on the 13th day, which is called as Trayodashi. Traditionally, the science behind this is, on this day, everybody worships Dhanavantri, the deity dedicated to one's health and well-being. Dhanavantri, or the deity Dhanavantri, is supposed to be the source of Ayurveda, the science of long and healthy lives. Because the nature of the language is like that, in northern India, most people speak Hindi language, and the last syllable, they'll cut it off. If you say Dhyanalingam, they'll say Dhyanalinga. If you say Rama, they'll say Ram. Deepavali, Diwali, like this. So someone cut this Dhanavantri and Trayodashi and made it Dhantera. What was about health became about wealth. Dhan means money Now everybody thinks Deepavali is about money. Why it is about health is, for those of us who live in the northern hemisphere, it is from this day onwards, certain things change. From the Trayodashi of Kartika Masa, things change. In a way, there is a slowdown of life. So for the winter months, what you should do with yourself, what time you should wake up, what you should eat, how your food habits should change, how your practices should change, for all this, traditionally they created a science as to how one should behave to pass through winter months without getting sick, without getting depressed, without losing your sense of balance and purpose in life. How to do this? For this, there was an entire science. Lighting of lamps and bursting of crackers was one of those things, so that you don't slip into a slowdown. There is genetically, there is a dimension, the evolutionary memory within us thinks that as winter months come, whether it actually got cold or global warming kept you warm, that's not the point. The changes have happened. The distance between the planet and the way the planet and the sun are positioned has changed. Because of that, slowdown of life happens. If you were a bear, you would be hibernating. So there is a tendency for the body to hibernate. Because life is slowing down, we are preparing to do more energetic things around us so that we don't really slow down and become a part of that. In a way, we are trying to assert our evolution. If we were some other creature, we would go and curl up somewhere. But now we have become human, you are supposed to have transcended your biological tendencies. So, to transcend this, there's a whole lot of activity created so that you don't go into a hibernating kind of state. Physically slow down, mentally little bit of depression could easily happen in everybody because the season is like that. From this month onwards,
normally, traditionally, the roles of males and females are interchanged at this time. For example, it is a part of daily activity for a woman, not anymore, in rural India still, that first thing in the morning, she cleans the front of her house and draws some geometrical figures. And every day, Monday, Tuesday, like this, every day of the week, she is supposed to draw a specific design, geometric design, to attract a certain kind of energy into her home. If it's a full moon day, a certain kind of design. If it's a new moon day, a certain kind of design. So 28 patterns were there, which people knew on which day what to put. And this is the only month where men are supposed to go out singing on the street in the morning. Even today, a small number of people are doing this. Everybody who lives there needs this beat of drum and music to reverberate in their system so that they don't hibernate. So Deepavali is about that. If you cannot see the light, that's why the crackers, so that you anyway wake up and everybody becomes alive. Because it is important in the winter months that you come up before the sun. The first ray of sun should not hit a blade of grass or some other worm or insect. The first ray of sun must hit you. This is a commitment. That is why before sunrise, everybody is out to receive the first rays of sun upon themselves, not upon the ground. So, the significance of the festival has largely been ignored. It is time to bring this back, especially in colder weathers. This would be wonderful if some of these things are revived, because Diwali is not a religious festival, it's got something to do with our geographical location on this planet, because we are in the northern hemisphere. You see, everything slows down. Physically, if you slow down, you will become susceptible to various other ailments which you may not be susceptible if your body is vibrant and alive. If this body is vibrant or alive, there are 1,000 infections within you right now, but you don't get sick because body is alive and vibrant. This is why the whole thing about Dhanvantari, the science of health and well-being, that it must be kept alive till 14th of January, everything must be kept alive. You need music, you need more light, you need lamplight, you need all kinds of things to keep the atmosphere alive for yourself so that you don't sink down. So this is the significance of Deepavali. It is Dhanvantari's Trayodashi. जी जनाब। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जितने भी इंडियंस के त्यौहार हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक थ्रू भी प्रूव होते हैं और बेनिफिशियल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको मनाना सिर्फ खुशी के लिए, सिर्फ मनाना ज़रूरी है इसलिए, या वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बस अहमियत के हामिल हैं। आप अक्सर देखिएगा ज़्यादातर त्योहारों के अंदर बताया जाता है कि साइंस ने भी इसको प्रूव किया है कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेनिफिशियल है और इसे मनाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, सबसे पहले तो हमने बहुत सारी बेशुमार ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमें ये पता चला है, जिसका हमें प्रूफ मिला है कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज़हीन थे। बहुत। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियर कर लूँ, आप मुझे बताइए, फिर मैं इस बात को कंटिन्यू करूँ कि ये त्यौहार रिलीजियस नहीं है। ये कह रहे थे कि ये त्यौहार रिलीजियस नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ठीक है ना? चलो ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले तो हमारे पूर्वज थे बहुत ही सही, बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही ज़्यादा एक बुर्दबारी थी उनके अंदर। शायद आज के लोगों में वो नहीं है। जो जो चीज़ें वो करके जा चुके हैं, आज लोग हैरान हैं। तो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू हुई होंगी, ठीक है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शुरू हुए होंगे, उनकी कोई इब्तिदा हुई होगी कैसे न कैसे तरीके से। तो मैं ये कहता हूँ कि आप उसकी लॉजिक देखें, आप उसकी उसके अंदर फितरत के अंदर देखें। अगर हम इंसान की बॉडी को, इंसान की नेचर को, इंसान के बिहेवियर को, मौसम को, चीज़ों को गौर करें तो हमें पता चलता है। ये तो हमें जितना नहीं पता
और अगर जितना हमें पता चलेगा हम उसको मज़ीद गौर करें कि किस त्यौहार में क्या हो रहा है, उसकी हमें ऑटोमेटिकली इंसान की फितरत के हिसाब से उसके अंदर जो इम्पेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है इंसान, वो ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा। कई त्यौहार ऐसे हैं, मज़ीद कई त्यौहार ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा हम अक्सर जिक्र करते हैं रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन की साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा बेहतर उसमें है कि आप बाकायदा एक ऐलान कर रहे हो, आप बाकायदा एक अनाउंस कर रहे हो अपनी बहन की हिफाजत का। बहन बाकायदा अनाउंस कर रही है अपने भाई को रक्षा करवाने का। एक दोबारा से एक तरह से हर साल एक मनाया जाता है, ठीक है, रिमाइंड कराया जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस तो ये होती है, लेकिन इसका आप मेंटली तौर पे रीज़न देखो तो कितना स्ट्रॉन्ग निकलता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ कि अब तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर हमने यही देखा है, यही सीखा है, या उसकी बिना पर, उसके बलबूते पर अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो कुछ भी बिला वजह नहीं है। हमारे जो अबाउतात करके गए हैं, जो रस्में कायम दायम करके गए हैं, जो रवाज छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेवजह नहीं था। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी बातें हैं कि हमारे तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया, या हमें पता नहीं चल पाया कि ये निकला क्यों, कैसे निकला, या फिर इसकी हिस्ट्री भी होगी, हो सकता है हमारी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई अच्छाई है आपकी। यानी कि आप ये करते हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मुझे याद आती है छोटी सी बात, मैं आपको बताऊंगी, आप भी हैरान हो जाओगे। आपको याद है हमने सिंदूर वाली वीडियो देखी थी, जिसमें कहा जाता था कि हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर लगाना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, जिसमें बताया गया था कि आप सिंदूर लगाते हो तो फिर आपका माइंड तेज़ होता है, तरोताज़ा होता है और आप मज़ीद शार्प बनते हो। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत डिटेल में वीडियो थी, उसमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया था कि ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चूड़ियों के बारे में बताया गया था, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता है और अच्छा रहता है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ भी करके दिखाया गया था कि हमारे पूर्वज या हमारे आबाउतात ऐसे ही नहीं करते, इसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा है, कुछ ना कुछ आपकी अच्छाई है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो रस्म व रवाज हैं वो कुछ सिलेक्टेड ही हैं। इनके रस्म व रवाज आप देखेंगे, होली है, रक्षाबंधन है, और गुड़ी पड़वा हमने देखा था, और आरतियाँ, बेशुमार आरतियाँ हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, दोबारा जिक्र करूँगी, पूरा साल गुजर जाता है त्यौहारों को मनाते मनाते। तो ये लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, जैसे हमारे अंदर एक फेडअपनेस आ जाती है, हमारे अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, अपसेट हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं। आपको याद होगा एक वीडियो और भी देखी थी जिसमें कहा था कि इंडियन को दूसरे मुल्कों में, विदेश में प्रायोरिटी देने का पहला मकसद भी यही है कि जल्दी हार नहीं मानते, जल्दी थकते नहीं हैं, कि कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस का मुकाबला करते हैं, उसको फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये त्यौहार ही है वो रीज़न जो इनको तरोताज़ा रखता है, जो इनको एनर्जेटिक रखता है, जो इनको हमेशा चार्ज रखता है कि जल्दी पीछे नहीं हटते। दूसरी बात ये कहूँगी, अच्छा मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, दिवाली में बेसिकली हम देखते हैं एक तो लाइटिंग्स की जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, इतनी जल्दी लग रही है ना, दोबारा दिवाली आ गई। अभी ऐसा लग रहा है, अभी इन्होंने बाइकआउट किया था चाइना का और दिए खुद से बनाए थे, मुझे लग रहा है अभी कल की बात है और आज फिर से आ गई। खैर, तो एक मैंने दो चीज़ें देखी हैं जो मैन होती हैं। एक तो दिवाली में हम देखते हैं कि लाइटिंग्स की जाती हैं, चिराग जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, और मतलब वो खुशियों का एक संदेश है मेरे हिसाब से, इंसान की जिंदा दिली का एक संदेश है। दूसरा हम ये देखते हैं कि फुलझड़ियाँ, पटाखे फाड़े जाते हैं। अच्छा, फुलझड़ियों के हवाले से अक्सर मैं ये सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को जलाना या किसी भी चीज़ को फाड़ना या किसी भी चीज़ को, जैसे कि फुलझड़ी हो गई, काफ़ी देर तक आप उसको हाथ में लेकर देखते रहो। बचपन में इत्तेफाक हुआ है, अक्सर शब बारात वगैरह में हम जलाया करते थे। ऐसा लगता है आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, आपकी जो भी मसले मसाइल हैं, आपका जो भी डिप्रेशन है, आप जितने भी थके हुए हो, हारे हुए हो, आप यकीन करें 2 मिनट आप बस उसको जलता हुआ देखें, आपको इतना अच्छा फील आता है, इतना तरोताज़ा फील होता है। तो मुझे वाकई ऐसा लगता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर चीज़ के पीछे वाकई कोई ना कोई लॉजिक है। और लाइट हमें वैसे ही अच्छी लगती है। अगर आप अंधेरे में हैं, जैसे रोशनी होती है, आपको थोड़ी सी खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो रोशनी एक तरह से पॉजिटिविटी, रोशनी एक तरह से एनर्जी, रोशनी एक तरह से आप खुशी, बहुत सारी चीज़ों का पैगाम देती है। तो दिवाली का भी यही मकसद है। और भी बेशुमार चीज़ें होंगी जो इस वीडियो में इन्होंने कवर नहीं की, मेरे ख्याल में जो बातें इन्होंने बताई, बस इन्होंने मिस्टेक्स बताई ना। हाँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी एक अजीब सी बात, यूनिक सी बात है कि हम पाकिस्तान में हमारे थोड़ा सा मतलब है कि इस तरह से त्यौहार हैं वो अलग हैं, ईद है वगैरह जो भी हैं, आपके त्यौहार अलग हैं। तो
मैं मतलब थोड़ा सा फ़र्क बताऊं हमारी नेचरों में, आपकी हमारी नेचरों में थोड़ा सा फ़र्क। मैंने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ापन देखा है लोगों में। मैंने लोगों को खुश नहीं देखा है, मैंने लोगों को एक दूसरे से नाराज़ देखा है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आप को चीर के भी रख दो ना कि मैं ये चीज़ है, मैं ये सच कह रहा हूँ, यकीन करो, मिसाल के तौर पे, तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, एक दूसरे पे यकीन नहीं है, और एक दूसरे का नुकसान करने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है बनिस्बत अपने आप को तरक्की देने में। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स या आप लोगों की बातें, अक्सर आप लोग जिस तरह की वीडियोस होती हैं, किस तरह की वीडियोस पे आप लोग ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं या बात करते हैं, अक्सर आप बाकायदा एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर आप जवाब देते हैं। तो मैंने देखा है कि आप लोगों के अंदर जो है, जो हम पाकिस्तानियों से तो मिलते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम उनके साथ उठते बैठते हैं। आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के ज़रिए हम लोग या मैसेज के ज़रिए राब्ते में हैं। तो हम लोग, मैंने ये जो नोट किया है कि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी डीपनेस है, चीज़ों को गहराई से पकड़ने की, मतलब आप बिल्कुल ऐसे लाओबाली एक लोग होते हैं ना, बस सही चीज़ों पे नहीं जाते, आप लोग डीप। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल दे दें कि मैं सिर्फ इस ऐड की बात कर लूँ, जो हमने ऐड देखा था दिवाली का, थोड़ी सी जगह बनाए, मैं कहता हूँ शायद पता नहीं 10 साल लग जाए हमें ये ऐड सोचने में। मतलब आगे हम इतना पीछे हैं, सेंसिटिविटी को लेके, गहराई को लेके इतना पीछे हैं कि शायद हमें 10 साल लग जाए इस तरह की गहरी इमोशनल कोई ऐड बनाने में। अच्छा, तो बहुत फ़र्क है हमारी और आपकी सोचों में। मैं 2 लफ्ज़ों में अगर बताऊं, मैंने जो फील किया है, मैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि हम इनसे भी जुड़ चुके हैं और अपने लोगों से तो हम जुड़े हुए, बचपन से ही जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो एक बहुत बड़ा भेदभाव समझ लें, या मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ लें जो फील किया है, ये लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। ये चीज़ों को, जो नेगेटिव भी है ना, उसको भी नेगेटिव नहीं लेते, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं और कहते हैं नहीं यार, ये रीज़न रहा होगा तो ऐसा होगा, ये बुरा इंसान नहीं। हमारे यहाँ कोई अगर पॉजिटिव तरीके से भी आपको समझाने के लिए भी आगे बढ़ जाए, या झूठ मत बोलो, या डकैती मत करो, या किसी को धोखा मत दो, गलत बात, तो वो सामने वाला बंदा आपसे लड़ने लग जाएगा कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम बहुत ज्ञान दे रहे हो, तुम खुद क्या हो, ये है वो है। तो वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढेगा। और आप लोगों के अंदर मैंने देखा, आपको पता है, एक हमारे व्यूवर है, वो अक्सर मुझे मैसेजेस करते रहते। अब जाहिर सी बात है, इतनी रिक्वेस्ट होती है, मैं उनकी रिक्वेस्ट मतलब पूरी नहीं कर पा रही। तो एक दिन खुद से मुझे मैसेज करके कहने लगे कि मैम, मैं समझ सकता हूँ, आपके पास तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती होगी, तो मेरा नंबर आने में टाइम लगेगा, और मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, और हाँ, ऐसा है कि सबको भी यही समझना चाहिए, कोई भी आपसे नाराज़ ना हो। बड़ी बात है। तो मतलब मुझे उस वक्त यार फील हुआ कि देखिए, नेगेटिव था कि मैं उनकी सुन नहीं रही हूँ, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन उसमें भी उन्होंने पॉजिटिव ढूंढा कि हाँ, वाकई उनको टाइम लग रहा होगा, ज़रूर पूरी होगी, मुझे यकीन है। एक लेसन भी तो है ना कि आप दूसरे की जगह पे जाके सोचने के काबिल कब होते हैं, तब आप एक मतलब एक इंसान कहलाते हैं। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इतनी इन्फॉर्मेटिव जो हमें नहीं पता था दिवाली के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।